हम लोग अब आजकल जो हमारा जिस प्रकार से तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, फास्टिंग और पीपी पोस्ट प्रेंडियल इन दोनों शुगर के बड़े तगड़े वैल्यूज हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि नॉन डायबिटिक पर्सन के लिए खाली पेट शुगर या फास्टिंग की शुगर या ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, तो वो 100 के नीचे होना चाहिए। अगर 100 के ऊपर किसी भी टाइम आपका ग्लूकोज जा रहा है तो आप डायबिटीज की रेंज में पहुंच रहे हैं। यू आर हैविंग अ रेंज ऑफ प्री डायबिटीज और डायबिटीज, तो 100 याद करना है। जैसे ही आपका फास्टिंग लेवल 126 के ऊपर अगर जाने लग जाए तो आपको अपने चिकित्सक को तुरंत संपर्क कर और ट्रीटमेंट चालू करवाना पड़ेगा। Hello everyone, welcome in the another episode of Doc Talk powered by Collect Care, and today we have with us a very special guest, Dr. Saurabh Mishra. Dr. Saurabh Mishra is MBBS, PGDLM, did certification courses in diabetes, insulin pump physician, and also lipid management and food diabetes. He's emergency in charge at Regency Healthcare Kanpur, also consultant physician and diabetologist at Center for Diabetes and Endocrine Diseases, Kanpur. वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू लोकेश। तो स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज बोलूंगा, आई हैड बीन वर्किंग इन रीजेंसी हॉस्पिटल सिंस पास्ट 16 years. नाउ आई एम वर्किंग इन माय ओन सेटअप. आई हैव माय सेटअप इन उन्नाव. द नेम ऑफ द सेटअप इज आरकेएम सेंटर फॉर डायबिटीज. And then I work with Dr. Rishi Shukla. He is the renowned endocrinologist of our state in UP. I work there in evening, and in morning I work at my place. So what I have experienced that working all throughout 12 hours of the day, when I work with my diabetic patients, people who have metabolic diseases, obesity people, so my all people, I don't call them patients specifically, I call them diabetic friends. I have been working in Regency Hospital since past many years. I have seen many patients over stretchers also. So these are people who are lying down on bed and cannot do physical work, has to be termed as patient. But the person who is entering my clinic, I call them as my diabetic friends. So the approach towards them suddenly changes and they understand it. Okay, now it's good. So I just want to create awareness among all my diabetic population who is having diabetes, that diabetes is not a disease to be worried about or thought about. Just a proper management of lifestyle, proper management of diet, and a little bit awareness about medications which they are being prescribed, taken regularly, may change a world. And definitely, I think so. All people who enter my clinic, they are in very good dresses. And how can I call these beautiful people as patients? So these are my diabetic friends. So with this introduction, I would like you to proceed on with your questions. Sure, sir. I think same energy I am also feeling ki, like this podcast will be one of the bad podcasts that I have did, sir. So sir, मतलब when I was doing research and all, तो एक चीज जाना मैंने कि जैसे सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड्स करते हैं, वैसे आपके ये नापो तो जानो वाला जो पूरा हैशटैग है, ये वायरलिटी ये पूरा हो चुका है। ये रीजन के अंदर आपने जो अवेयरनेस करी है मेजरमेंट को लेके, आई थिंक दैट बहुत बढ़िया। सो यू हैव गॉट माय पंच लाइन। बेसिकली क्या है लोकेश, जब हम लोग कभी भी किसी भी लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को, तो कुछ एक सिंप्लीफाइड पंच लाइन बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें से कभी भी अगर वो पंच लाइन बोली जाए तो उन्हें सारा अपना डॉक्टर का दिया हुआ जो भी ज्ञान डॉक्टर ने दिया वो तुरंत आंखों के सामने आ जाए। तो मैंने ऐसे ही डिजाइन किया, कुछ वही करीबन अप्रोक्सीमेटली 13 years 2012 में मैंने पंच लाइन डिसाइड किया था, नापो तो जानो। नापो तो जानो बड़ा अप्रिशिएट हुआ, मेरे गुरुजी ने अप्रिशिएट किया, डॉक्टर ऋषि शुक्ला सर ने अप्रिशिएट किया, फिर मेरे फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने, फिर हमारे स्टेट के फिजिशियंस ने, फिर नेशन वाइड, all throughout nationwide people recognized and supported this punchline. नापो तो जानो। नापो तो जानो का अर्थ है कि अगर आपको जैसे कि कोई भी बीमारी, सपोज डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, या थायराइड रिलेटेड कोई आपको लग रहा समस्या है, लिपिड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जब तक नापेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और कई बार जब हम लोग नापते नहीं है तो कुछ छुपी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जैक्टली हमें नहीं पता चलती और हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने एक लाइन बनाई, नापो तो जानो। बीपी नापो तो जानो, शुगर नापो तो जानो, वेट नापो तो जानो, थायराइड नापो तो जानो। So these are some things which we cannot assume. We have to have a digital value so that in modern medicines that these can be prevented or can be cured or can be controlled.
तो दीज आर सम थिंग्स विच वी अंडरस्टूड एंड पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि नहीं हाँ सही है, चेक टू नो। अगर इसको हिंदी में के बजाय इंग्लिश में बोले तो चेक टू नो। सपोज अगर लोकेश हम कभी मार्केट में कहीं जाते हैं तो हम लोग हर एक सौदा जो भी लेते हैं या कोई भी चीज दुनिया में करते हैं तो नाप के करते हैं ना। जमीन लेते हैं तो नाप के लेते हैं, कपड़े लेते हैं तो नाप के लेते हैं, कभी कुछ बर्तन लेते हैं, सोना चांदी तो और नाप नाप के लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी है, इसकी केयर के लिए हम लोग नाप के क्यों नहीं करते हैं? ये एक बेसिक मेरा एक मंत्र था जो मैंने लोगों के बीच में लाया एंड देन अप्रिशिएटेड। और मैंने अपने डाइट चार्ट के ऊपर लिखा है नापो तो जानो। कई बार मैं नापो तो जानो क्लिनिक्स पे चेकअप्स करता हूँ, लोगों के फ्री कैंप्स करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई थिंक सो फार्मा पीपल कनेक्टेड वेरी प्रॉपर्ली विद दिस इफेक्ट एंड दे लव दिस पंच लाइन, नापो तो जानो। एंड दिस इज वाज द रिसर्च व्हिच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। एग्री सर। और सेम मतलब एवरी जो पूरी गवर्नमेंट और पूरा इंडिया जब बढ़ रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ, वहाँ पे ये टैगलाइन बहुत मतलब फोकल पॉइंट है, ये बिल्कुल मेन पॉइंट की तरह आती है सर। तो आई थिंक आपने इतना सब मेंशन किया सर, मतलब मेरा एक क्यूरियोसिटी हो गई है लाइक आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए कि आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया, फिर आपने मेडिसिन चूज करने का कैसे डिसाइड किया और उसमें भी स्पेशली डायबिटीज पर फोकस करने का कैसे डिसीजन लिया। जी, देखिए ये तो खैर कोई वंडर स्टोरी नहीं है। हमारे ख्याल से सारे जितने फिजिशियंस हैं बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी अभी मेरे हृदय में आई है लोकेश, कि डायबिटीज क्या कोई भी फिजिशियन जो है हमारा वो बिल्कुल माँ की तरह होता है। कई बार हम डॉक्टर्स को कई बार बोलते हैं आप भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान सबका एक है। हमको किसी को भी भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। डॉक्टर एक माँ के जैसा है। बुरे से बुरे वक्त में जैसे माँ साथ नहीं छोड़ती, आपका डॉक्टर साथ नहीं छोड़ेगा, फिजिशियन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वही एक डॉक्टर ही माँ के बाद ऐसा होता है जो आपका फीकल मटेरियल साफ कर देगा, आपका थूक साफ कर देगा, पसीना पोंछ देगा, आपको रेस्ट करा लेगा, बीपी नाप लेगा, शुगर नाप लेगा, दवा दे देगा, पानी दे देगा, खाना दे देगा। जब आप अकेले होगो तो आपके हृदय के साथ चिपक के कंपैशनेटली आपको बिल्कुल माँ वाला हक दे सकता है। ओनली डॉक्टर इज द पर्सन नेक्स्ट टू योर मदर हु कैन गिव परफेक्ट केयर टू योर बॉडी, और विदाउट कोई शर्म भी नहीं होती। और हम भी अपने डॉक्टर से शर्म नहीं करते, हर एक चीज शेयर करते हैं, और डॉक्टर भी खुल के बात करता है पेशेंट्स के लिए। तो डेफिनेटली अगर हम मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर इज जस्ट लाइक योर मदर। तो इसी तरीके से जर्नी का स्टार्टिंग हुआ। मेरे पापा फिजिशियन हैं एंड माय फादर, आई वर्कड विद माय फादर इन हिज क्लिनिक। मैं पिताजी के साथ उनकी क्लिनिक में काम करता था जब मैं 11th और 12th में था। जब मेरे पास खाली समय होता था तो मैं पापा के साथ काम करता था, और पापा ने मुझे सारे काम सिखाए। उन्होंने मुझे उनकी क्लिनिक को साफ करने का तरीका, वहां पे किस प्रकार से वाइपिंग करनी है, कैसे डस्टिंग करनी है, इंस्ट्रूमेंट सारे सिखाए। फिर कंपाउंडर की तरह दवा की ट्रेनिंग दी, पट्टी बांधना। तो वो 11वां या 12वां जो मेरे पिताजी के साथ गुजरा एज हिज कंपाउंडर, आई शुड से, दैट वाज द टाइम विच गेव मी अ गियर। नहीं ठीक है, डॉक्टर बनना है। कई बार एक बार मन आया कि मेरी मैथ्स स्ट्रांग है, आई शुड गो फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो, आई कैन ऑप्ट फॉर बीटेक ऑल्सो, बट माई फादर स्टूड एंड ही टोल्ड मी टू गो फॉर दिस प्रोफेशन। एंड टुडे मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझे वहां पे भी जानते थे कि ये बच्चा इसीलिए बना है। और मुझे याद है मैं अपने पापा के पैशन की वजह से आज डॉक्टर हूं। ओनली बिकॉज ऑफ माई फादर आई वॉन्टेड इज गुड वर्क टू बी कैरिड आउट इन द सोसाइटी। और जिस एरिया में वो प्रैक्टिस करते हैं मैं उसी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, और उसी ढंग से प्रैक्टिस करता हूँ जैसे मेरे पापा लोगों को नरिश करते हैं, चेरिश करते हैं। जितने भी हमारे सीनियर फिजिशियंस हैं हमने उनसे बड़ा प्रेम लर्न किया है। तो उसी तरीके से मैं भी सोच रहा था अपने पापा के जैसा बनूं। तो मैं उनके जैसा तो नहीं, लेकिन मैं आपके सामने जैसा भी हूं, आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और फिर उसके बाद सेकंड थिंग, जब मैं अपनी एमबीबीएस की डिग्री लेके अपने पिताजी के पास आया, मैंने नेपालगंज मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, एनजीएमसी जो कि नेपालगंज में है। वहां से जब मैंने किया उसके बाद हम लोगों को फॉरेन ग्रेजुएट्स होने के नाते लाइसेंसिंग एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। वो भी मैंने फर्स्ट वो में क्लियर किया। आई गॉट माई इंडियन लाइसेंसेज। मैंने प्रैक्टिस चालू करी। तो जब मैं सब चीजें करके अपने पापा के पास आया तो वो अपने एक पेशेंट को ही वॉज ड्रेसिंग, तो उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा आज से मैंने तुम्हें समाज को दे दिया। मतलब तुम मेरे बेटे थे, तुम डिग्री लेके आए हो, बट आज से मैंने तुम्हें समाज को दे दिया। दोज आर द वर्ड्स, वो आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। और मैं उसी ढंग से अपने हर एक पेशेंट को उसी ढंग से देखता हूं। और मैं चाहता हूं जो लोग भी, जितने मित्र मेरे डॉक्टर्स या डॉक्टर्स होने वाले हमारे प्रिय दोस्त, जितने मित्र जो हमारे जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टरी में जा रहे हैं, मेरे इस पोस्ट कार्ड से इस पॉडकास्ट को देखें और समझें कि यही पैशन रखना है। हम लोग उनकी माँ हैं। हम भगवान नहीं बनते किसी के, ना कभी किसी डॉक्टर को भगवान का दर्जा
देना चाहिए, वो हमारे माँ के जैसा होता है. So this was a little bit journey. When I got, then I just joined directly Regency Hospital. Regency Hospital में उस टाइम पे DNB आने वाली थी, लेकिन बट नेचुरल हमारे टाइम तक DNB नहीं आई. I was DNB cleared graduate. I wanted to join surgery in further. But Regency का फिर मैंने इमरजेंसी संभाला. I remained there as an emergency in charge. Since emergency and critical care मैं सब संभालता था. 17-18 मैंने 17 साल वहाँ पे काम किया. फिर पोस्ट कोविड एरा में मैंने अपना एक छोटा सा क्लिनिक बनाया शुक्लागंज में. अब उसको प्रमोट कर रहा हूं. मैं अपने लोकल लोगों की कुछ मदद करना चाहता हूं. प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, डे केयर, डिस्पेंसरी वगैरह सेटअप करना चाहता हूं. तो दिस वाज माय जर्नी. और मेरी जर्नी में मेरी माँ ने बड़ा मेरा ध्यान दिया. मुझे याद है माय मदर बिकेम जस्ट लाइक अ सेकंड पावर टू मी. एंड देन came the third lady in my life is my wife. She is also a doctor. She is a gynec. Then the fourth lady is my sister. So I think so I have been made by these ladies all throughout and give a good thanks to them. And हम सब अपनी माँ के होते हैं. आप अपनी माँ के हैं. जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो सब भी अपने माँ के ट्रू होते हैं. मेरे गुरुजी ने शिक्षा मुझे दी कि हम लोग रियली अपनी माँ के ही होते हैं. Whosoever, जो भी है वो अपनी माँ के होते हैं. तो we are the real property of our mother. And I think so this is what creates a good doctor to become a direct connection with your family. प्यार, जो आदमी अपने परिवार को प्यार करेगा वो अपने समाज को प्यार करेगा, देश को प्यार करेगा, वही उसी के मन से चीजें निकलेंगी. तो अपने जितने भी जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, सबको मैं यही कहता हूँ, ट्राई टू बी वेरी हम्बल टुवर्ड्स योर मदर, योर पार्टनर, योर सिस्टर, योर डॉटर, and try to help the society to build the things come back again on track which was there in earlier phase also. It is coming back. और बड़ा पॉजिटिव है. बहुत सारी चीजें सुधर रही हैं. हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ सुधर रहा है. डायबिटीज केयर में बहुत कुछ सुधर रहा है. हमारे हेल्थ की डायग्नोस्टिक्स में सुधर रहा है. अर्ली प्रिवेंशन में सुधर रहा है. देखिए आज हम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के इस पॉडकास्ट के जरिए आपके थ्रू लोकेश कितने लोगों को हम लोग अपनी बात बता पा रहे हैं. तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है. Since past 5 years, I have seen everything is rocketed in our country. Country is growing like anything. So congratulations to you all. आगे बढ़ते हैं. Next question. यस श्योर. आई थिंक आपने बिल्कुल सही मेंशन किया सर कि दैट एक एक जो होती है ना वो लेगेसी जो आती है आपकी पेरेंटिंग से, और वो आई थिंक उसका जो मीनिंग होता है लाइफ वो डिफाइन कर देता है कि वो लेगेसी लेके आए एंड देन वो आपके थ्रू ट्रांसफर हुई. नाउ यू आर आल्सो वर्किंग इन योर टाउन टू गिव द बेस्ट फैसिलिटीज जो वो लोग डिजर्व करते हैं, राइट. सो आई थिंक वो लेगेसी के साथ में आता है. सेम वो जो थॉट प्रोसेस है जो आपके पेरेंट्स का था वो आपके अंदर ट्रांसफर हुआ सर. सो आपने जो बात करी यहाँ पे कि लाइक आपका जो टैगलाइन है नापो तो जानो, आई थिंक ये बहुत एक्चुअली में मीन करता है. एंड देन लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी अपने टेस्ट को लेके आते हैं, वो चाहे ब्लड प्रेशर हो चाहे वो ब्लड शुगर हो, राइट. कि फास्टिंग कौन सी होती है, पोस्ट प्रेंडियल कौन सी होती है, HbA1c क्या है. तो इनको सर क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए एक बार सिंपल शब्दों में समझा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ डायबिटीज. वेरी राइट, वेरी राइट, टूली सेट. कई बार क्या होता है ना, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. एटलीस्ट इन आर सेंट्रल इंडिया एंड स्पेसिफिकली इन उत्तर प्रदेश वेयर आई प्रैक्टिस, कई बार सही नॉलेज न होने, दवाइयां बहुत बढ़िया हैं, हमारे फिजिशियंस टॉप लेवल हैं, हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स बड़े टॉप लेवल के हैं जो कि चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जो हमारा पेशेंट टू पेशेंट इंटरेक्शन का समय है वो हमारे भारत में, चूंकि हमारे पास जनसंख्या एक्सप्लोजन है, हमको बड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक पेशेंट को 10-15 मिनट डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन सपोर्ट देने में. तो ये जो आज हम लोग कर रहे हैं इसके माध्यम से बहुत सारे लोग जान जाएंगे स्पेसिफिकली. सो देयर इज अ टर्म नोन एज फास्टिंग लेवल्स ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज. फास्टिंग का मतलब होता है खाली पेट, और पोस्ट प्रेंडियल लेवल ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद. ये दो मुख्यतः 2 टेस्ट हैं जिनके आधार पे हम अपने पूरे डायबिटीज की जर्नी को कंट्रोल करते हैं और बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं. तीसरा टर्म है HbA1c. ये पिछले 3 महीने का एवरेज आता है. अब HbA1c सबसे पहले मैं समझाऊंगा है क्या. हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हर 3 महीने में बनता है. तो उस हीमोग्लोबिन पे कितना ग्लूकोज आके चिपक गया उसको वो ग्लूकोसाइलेट हो जाता है, ग्लूकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हो जाता है, और वो अलग से माइक्रोस्कोप में पकड़ा जाता है कि हाँ ग्लूकोज. तो नॉर्मल जो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज एक हीमोग्लोबिन पे उसके 90 दिन के जीवन काल में चिपकना चाहिए, दैट इज 5.7. तो 5.7% के अगर नीचे है तो हम कहते हैं वो नॉन डायबिटिक है. 5.7 से 6.4% के बीच में अगर ग्लूकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हमें मिलता है ब्लड में तो उसे हम कहते हैं प्री डायबिटिक है.
और अगर वो 6.4 के ऊपर पहुंच जाता है HbA1c परसेंटेज जो है, तो उसको हम कहते हैं क्लियर कट डायबिटिक है। तो दो वैल्यूज याद करनी है, एक 5.7 और एक 6.4। 5.7 से नीचे नॉन डायबिटिक, 6.4 के ऊपर क्लियर कट डायबिटिक, और इन दोनों के बीच में प्री डायबिटिक। तो ये तो सोल्यूशन आता है। बाकी फास्टिंग का यहाँ क्या रोल है? हम लोग अब आजकल जो हमारा जिस प्रकार से तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, फास्टिंग और पीपी पोस्ट प्रेंडियल, इन दोनों शुगर के बड़े तगड़े वैल्यूज हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि नॉन डायबिटिक पर्सन के लिए खाली पेट शुगर या फास्टिंग की शुगर या ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, तो वो 100 के नीचे होना चाहिए। अगर 100 के ऊपर किसी भी टाइम आपका ग्लूकोज जा रहा है, तो आप डायबिटीज की रेंज में पहुंच रहे हैं। यू आर हैविंग अ रेंज ऑफ प्री डायबिटीज और डायबिटीज, तो 100 याद करना है। जैसे ही आपका फास्टिंग लेवल 126 के ऊपर अगर जाने लग जाए, तो आपको अपने चिकित्सक को तुरंत संपर्क कर और ट्रीटमेंट चालू करवाना पड़ेगा। तो बिल्कुल क्लियर कट बता दिया, फास्टिंग में एक वैल्यू है 100 के नीचे है तो नॉन डायबिटिक हो, 100 से ऊपर जा रहा है तो डायबिटीज हो रही है। हो सकता है अभी आप अपनी दिनचर्या से, लाइफ स्टाइल से इसको बराबर नापते रहे हर हफ्ते और कंट्रोल करे रहे, लेकिन जिस हफ्ते आपकी शुगर 126 के ऊपर चली जाए, दैट इज द डे यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू योर डॉक्टर to get properly treated and bring it back below 120. तो डेफिनेटली फास्टिंग 100 के ऊपर हम डायबिटिक बोलते हैं, 126 पे इलाज चाहिए। सेकेंड आता है पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिफिकली वो शुगर है जो हमारे बॉडी में खाना खाने के 2 घंटे के बाद रह जाती है ब्लड के अंदर। जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं, तो उसको कार्बोहाइड्रेट के अवज में हमारा बॉडी इंसुलिन रिलीज करने लग जाता है, जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो 2 घंटे के अंदर जितना शुगर वो कवर कर पाई, वो 140 के अंदर होना चाहिए। तो फास्टिंग 100 के अंदर और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 के अंदर। अब अगर ये पीपी 180 के ऊपर चली जाए, तो हमें कई बार ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी जगह हमने फास्टिंग बता दिया, पोस्ट प्रेंडियल बता दिया, HbA1c बता दिया। अब एक जो सबसे मेन बात है कि डायबिटीज का जनक क्या है? डायबिटीज का जनक है हमारा दिनचर्या में स्थिर रहना, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाना, किसी भी वजह से हम नहीं टहल पा रहे हैं, ओबेसिटी डेवलप हो रही है। तो 2 तरीके से हमारे भारत में डायबिटीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एक ट्रंकल ओबेसिटी हो जाना, जो कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। दूसरा, लीवर में फैट और पेनक्रियाटिक फैट का बढ़ना। जब लीवर में फैट इकट्ठा होता है, तो जो पेनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन है, उसकी सेंसिटिविटी कमजोर हो जाती है, और जो पेनक्रियास में फैट होता है, उससे हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। इसी को कहते हैं ट्विन हाइपोथेसिस। ट्विन हाइपोथेसिस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज का डेवलपमेंट होता है। टाइप 2 डायबिटीज में स्पेसिफिकली 2 तरीके से इंसुलिन हमारे बॉडी में बनती है। एक फेज 1 जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में हरदम रहता है, और एक फेज 2 इंसुलिन जो कि ग्लूकोज को बर्न करना चाहिए, वो खाने के बाद आता है। तो टाइप 1 में फेज 1 इंसुलिन डिग्रेड कर जाता है। फेज 2 तो आता है कई बार, पोस्ट प्रेंडियल कई बार हमको बड़ी अच्छी मिलती है, लेकिन फास्टिंग लेवल्स कम होते हैं। इसका मतलब डायबिटीज हो रही है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। अब 2-3 प्रकार के डायबिटीज हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज है, एक टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है। बहुत सारे कारण होते हैं, और इसका एकमात्र इलाज है एक बेसल इंसुलिन और 3 बोलस इंसुलिन। मतलब एक इंसुलिन जो घड़ी देख के लगे 24 घंटे में एक बार, जो 24 घंटे काम करे, और 3 शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो खाने से पहले लगाई जाए। इसका बस एक ही इलाज है कि हमको 4 बार इंसुलिन देनी है। इसको कहते हैं MDI, मल्टी डोज इंसुलिन। और टाइप 2 डायबिटीज में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। इंसुलिन नहीं बन रही है, कम बन रही है, सही प्रकार की नहीं बन रही है, बन रही है, सही प्रकार की बन रही है, सही जगह काम नहीं कर रही है। इन सब डिफेक्ट्स में जो भी आता है टर्म, उसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। और कुछ डायबिटीज जैसे कि लाडा या डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, GDM, ये और प्रकार की डायबिटीज है। लेकिन मुख्यतः हमें केंद्रित 2 डायबिटीज पे होना है, टाइप 1 और टाइप 2। नेक्स्ट आर लोकेश। एक्सप्लेनिंग दिस, आई थिंक बहुत सारे जो डाउट्स थे वो वन शॉट में आपने बहुत क्लियर कर दिया कि नॉर्मली क्या रेंज होनी चाहिए। अगर आप
कर रहे हैं राइट कि एक नॉर्मल रेंज से ऊपर जा रहा है तो कब तक जा सकते हैं, कब तक जा सकते हैं? 126 तक जा सकते हैं। वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, दौड़ भाग करें, आप अपना खाने को कंट्रोल करें, आप अपने ओबेसिटी कंट्रोल करें, आप अपना सारे और मेटाबॉलिक फंक्शंस को सुधारें, अपनी दिनचर्या सुधारें, स्लीपिंग आवर्स बेहतर करें, लाफिंग एक्सरसाइजेस करें। इससे आप इंप्रूव करेंगे तो हो सकता है आपका शुगर 126 के नीचे आप हरदम बनाए रखें। जब 126 के नीचे आप बनाए रखेंगे फास्टिंग, तो हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं है। फास्टिंग नापना बड़ा सरल है, हफ्ते में एक बार खाली पेट करना है। तो जो लोग जिनके यहाँ अनुवांशिक डायबिटीज है, वो अपनी शुगर नापें। नापो तो जानो, और नापो तो जानो तो फिर कुछ करो। कुछ करो में क्या करो, आप कुछ हेल्दी एक्सरसाइज करो, फूड को थोड़ा सा अनहेल्दी ना लो, इस तरीके से चीजों को करें। मैनेज करने से चीजें हो जाती हैं स्टार्टिंग में मैनेज। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मतलब कई बार क्या होता है सर, जैसे आपने बोला एक रेंज से ऊपर चला जाता है तो आदमी को एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट? डॉक्टर, फिजिशियंस को विज़िट करना हो। तो इसके साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि जिनको अभी-अभी डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, उनको कई बार इश्यू फेस होता है कि उनको कितनी बार अपने ब्लड शुगर को चेक करना चाहिए। कई लोग बहुत बिकॉज़ ह्यूमन माइंड है, राइट? वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने को लेके, कोई दिन में 2-3 बार कर रहे हैं, राइट? तो जस्ट एक आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? डेली, वीकली या फिर कुछ और पैटर्न है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या है ना लोकेश, हमारे यहाँ देश में टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो कई लोग जिनको रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज होती है, वो लोग कई बार कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी तेजी से अवेयरनेस हमारे भारत में फैल रही, बड़ा अच्छा से काम हो रहा है डायबिटीज पे। तो वो चाहते हैं किसी तरीके से मेरे डायबिटीज का रेमिशन हो जाए। डायबिटीज में कभी रिवर्सल नहीं होता है, रेमिशन होता है। तो रेमिशन ऑफ डायबिटीज टाइप 2 में ही पॉसिबल है। जो मेरे बच्चों जिनको टाइप 1 डायबिटीज डॉक्टर ने डायग्नोज किया है, उसमें आप कोई भी चीज प्लान ना करें, सीधे इंसुलिन की थेरेपी जो है 4 बार लेनी है। और जो डॉक्टर एडवाइस करे उसमें इलाज कोई दूसरा नहीं है दुनिया में। कहीं पे भी भटके नहीं, अपना समय ना वेस्ट करें, अपने बच्चे को बीमार ना करें। टाइप 1 में बेसल इंसुलिन और 3 बार बोलस इंसुलिन, ये लेने पे ही बच्चे को अच्छी से हेल्थ मिलेगी, और हमारे बच्चे जो 17 साल तक के बढ़िया ग्रो करेंगे। अब बात आती है टाइप 2 डायबिटीज की, जिनको अभी अभी पता चला, तो कितने फ्रीक्वेंसी में चेक करें। टाइप 1 में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जितना ज्यादा चेक कर सकते हैं दिन में उतना चेक करें। और उस वैल्यू के साथ डॉक्टर के साथ बैठकर, डाइटिशियन के साथ बैठकर डाइट अपना पूरा रिवाइज करवाएं, और अपने बच्चे का, और बच्चे की किस प्रकार से इंसुलिन लगनी चाहिए, कार्ब वो कैलकुलेट करके। तो ये टाइप 1 वाले में सिर्फ इंसुलिन लगनी है, और प्रॉपर चैनल से इसका काम करना है। यू डू नॉट हैव टू टेक योर स्टेप्स, इट इज द स्टेप टू बी टेकन बाय योर फिजिशियन। एंड इसमें सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में एक ही इलाज है, किसी और पद्धत पे टाइप 1 में जाने की आवश्यकता नहीं है। देयर आर नो ट्रीटमेंट्स। बहुत अट्रैक्शन है दुनिया में, ब्ला 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 ब्ला, हमको क्योर अट्रैक्ट करता है ना, तो क्योर के चक्कर में कई बार हम लोग क्योर से अट्रैक्ट होकर अपने बेसिक लाइन से हट जाते हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जितने हमारे टाइप 1 वाले बच्चे हैं, उनको 4 बार इंसुलिन का वादा करें देश में। जैसे हम लोग एक बार बेसल इंसुलिन लगाएंगे जो 24 घंटे काम करेगी, और 3 बार बोलस इंसुलिन लगाएंगे जो कि खाने को मैनेज करेगी। टाइप 2 डायबिटीज में अगर आपको डायबिटीज का लग रहा है कि 100 के ऊपर जा रही है, तो जैसे मैंने बोला, हर हफ्ते अगर आप खाली फास्टिंग भी करते हैं और अपना वेट नियंत्रित करते हैं, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करते हैं, तो काम करेगा। लेकिन अगर क्लियर कट डायबिटीज है कि 126 के ऊपर फास्टिंग जा रही है, HbA1c 6.4 के ऊपर भाग रहा है, पोस्ट प्रेंडियल 180 के पीछे भाग रही है, तो आपको अपने फिजिशियन से मिलकर, अपने डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर डाइट चार्ट, जिसका कि 33% डाइट का रोल होता है कंट्रोल में, 33% एक्सरसाइज का रोल होता है, वो 33% दवा का रोल होता है। जब इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो 99% कंट्रोल हमारे हाथ में बढ़ता है। तो 2 तरीके से हम शुगर को नाप सकते हैं आजकल। एक सेंसर है जो कि हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर बोलते हैं। कई सारे सेंसर्स पेट में भी लगाए जाते हैं। ये लाइव शुगर हमारे मोबाइल पे दिखाते हैं, तो इसमें बार बार प्रिक करने की या चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के सेंसर्स अभी भारत में कमर्शियली अलाउड है काफी सालों से, और बड़े अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट हाई होने की वजह से इनका थोड़ा अभी कुछ सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, कई सारे IIT के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। ये सब लोग मिलके बड़े कॉस्ट इफेक्टिव सेंसर्स हमारे भारत वाले लोगों के लिए बना देंगे। तो जब ये सेंसर्स अवेलेबल होंगे तो हमको लाइव शुगर दिखेगी हमारे मोबाइल पर। सो दीज आर गुड थिंग्स हैपनिंग। टिल देन हम लोगों को अपना शुगर हफ्ते में एक बार निश्चित नापना चाहिए, खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे के बाद। कोशिश करें सेम डे ना पड़े। तो मैं अपने लोगों से जो मैं बोलता हूं मैं बता रहा हूं, नापो तो जानो,
सप्ताह में एक बार या तो छठे दिन नापो या 8वें दिन नापो। छठे दिन नापने से भी दिन बदलता रहेगा और 8वें दिन नापने से भी दिन बदलता रहेगा। सेम दिन संडे 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 सेम दिन नहीं आएगा। तो सारे दिनों की दिनचर्या पता चल जाएगी, वेरिएशंस पता चल जाएंगे। तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग और पीपी हर एक इंसान को जिसके डायबिटीज के खतरे नापनी चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। ओके, एंड मतलब यहाँ पे भी क्या होता है कि जब लोग जब फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं, तब एक और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी आजकल, बिकॉज वी लिव इन ए डिजिटल वर्ल्ड, राइट? तो वहाँ पे लोगों को एक और क्वेश्चन, मतलब लोग, कोई बोल रहा होता है कि मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, यू नो, राइट, कि मॉर्निंग में अपना डायबिटीज चेक करना चाहिए, इवनिंग में चेक करना चाहिए, आफ्टरनून में करना चाहिए। सो लोग बहुत डाउट है लगते हैं इस चीज से रिलेटेड। सो सर, आपको क्या लगता है कि दिन में किस टाइम पे टेस्ट करना बहुत बढ़िया, यूज होता है? बहुत बढ़िया, सुबह खाली पेट खाने के बाद, या दोनों? मतलब व्हाट्स योर थॉट्स ऑन? बहुत बढ़िया। देखिए, दो चीजें सबसे मेन हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ेगी कि फास्टिंग और पीपी दोनों की आवश्यकता होती है डिजीज मैनेजमेंट में। तो मैंने जो अपने लोगों को सिखाया है, जैसे कि इस हफ्ते मैंने शुगर चेक करी तो फास्टिंग चेक कर ली, खाली पेट चेक कर ली और सुबह के नाश्ते के 2 घंटे के बाद कर ली। तो मुझे सुबह वाले स्लॉट के बारे में पता चला। मेरा दिनचर्या सेम रखा, मेरा खाना पीना सेम रखा, एवरीथिंग फाइन। अगली बार जब हमने चेक करी तो फास्टिंग चेक कर ली, दोपहर में खाने के 2 घंटे के बाद चेक कर ली। तो हमें ये पता चल गया कि दोपहर के बाद मैं कैसा हूं। फिर हमने खाना सेम रखा, हमारा लाइफस्टाइल सेम रखी, हमने फास्टिंग चेक कर ली और रात में खाने के 2 घंटे के बाद चेक कर ली। तो तीनों टाइम की हमें पोस्टप्रेंडियल मिल गई और 3 दिन का वेरिएटिंग हमको फाइनली फास्टिंग मिल गया। तो अगर हम हर हफ्ते भी करेंगे तो 3 हफ्ते में हम सब जान जाएंगे अपने बारे में कि पूरे दिन हम कहाँ रहते हैं, हमको उससे पता चल जाएगा और फास्टिंग से हमारा बेस पता चल जाएगा। तो कितना सिंपल है, हर 6 दिन पे अगर हम बस पीपी बदल दें, फास्टिंग सेम रखें बट पोस्ट प्रेंडियल बदलते चले जाएं, तो कितना बेहतरीन हो जाएगा, बड़े अच्छे से जान जाएंगे हम लोग। तो बड़ा सिंपल मेथड है, सारी शुगर को जानना जरूरी है। जितना बढ़िया मुझे नाप दे दोगे आप अपनी शुगर का, उतनी बढ़िया आपकी फिटिंग कर दूंगा मैं। ये टेलर बोलता है ना, रेडीमेड शर्ट मिलती है तो उसमें 42-44 एक्सएल डबल एक्सएल की शर्ट होती है, तो कई बार ढीली होती है, कभी कई बार टाइट होती है। और जब हम टेलर के पास जाते हैं तो जो टेलर दादा है ना, वो पूरा नाप लेता है, इधर कभी लेता है, इधर कभी लेता है, झुका के टेढ़ा करके सब जगह का नाप लेता है ना, तो फिटिंग अच्छा देता है। द सेम वे इज योर डॉक्टर, he is going to take your parameters into account and will adjust the medicine accordingly। तो आजकल डायबिटीज डिजिटल हो चुकी है, दिखती है, आजकल फील नहीं हो सकती है डायबिटीज, डायबिटीज दिखती है। तो जितना अच्छा दिखाओगे आप अपने फिजिशियन को, उतना बढ़िया आपको वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे देगा। बिल्कुल सर, और लाइक आई थिंक यहाँ पे डिपेंड भी यही करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लोगे तो वो एवरेज जो निकल के आएगा वो भी क्लियर निकल के आएगा। एंड देन यू विल बी ऑल्सो क्लियर कि मैं, अगर मेरा थर्सडे का लंच ज्यादा हैवी होता है तो मैं उसको थोड़ा कम करूं, बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक मेरा शुगर स्पाइक होता है। परफेक्ट, सेम परफेक्ट। सेम जिस बिल्कुल आपने जैसे सर अर्लियर भी मेंशन किया कि एक्सरसाइज और जो फैक्टर्स हैं, लाइक जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है मैनेजमेंट के अंदर। बिल्कुल 30 या नींद हो गया, एक्सरसाइज हो गया। सो सर, ये कितने फर्क डालते हैं रीडिंग्स पे? मतलब अगर मैं रोज एक्सरसाइज करना चालू करूं तो मैं क्या चीज ऐसी देख सकता हूं जिससे चेंजेस आ सकते हैं? और अगर मैं मेरी नींद प्रॉपर लूं तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये पूरा लाइफस्टाइल फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं इसमें? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखिए, हमारे बॉडी में जो हमारा ब्रेन है ना, वो स्पेसिफिकली हमारी बॉडी को गवर्न करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं हाथ कौन चला रहा है, तो ये हमारे कंट्रोल में है, मुंह हमारे कंट्रोल में है। मैं बंद कर लूं तो बोल नहीं सकता है अपने आप से ब्रेन। बट हु इज गवर्निंग द ऑटोनॉमिक फंक्शंस ऑफ आवर ब्रेन? दैट इज गवर्न्ड बाय आवर सिस्टम, दैट इज द ब्रेन। तो वो अंदर हार्ट को मैनेज कर रहा है, ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहा है, किडनी को मैनेज कर रहा है, लीवर को मैनेज कर रहा है, आपके सारे अंतड़ियों को मैनेज कर रहा है, सारे एब्जॉर्प्शन देख रहा है, सारे हार्मोन्स के फीडबैक देख रहा है। एवरीथिंग इज डन बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बड़ा स्ट्रांग बनाने की कोशिश, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी। तो एक ही ऑर्गन ऐसा है पूरे बॉडी में जो दोनों नर्व से इनर्वेट करता है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम किसी तरीके से सिंक्रोनाइज करना चाहें, जैसे आप डेटा सिंक्रोनाइज करते हो ना, जब नया मोबाइल लेते हो, यू गो ऑन टू योर डेटा एंड जस्ट यू सिंक्रोनाइज इट एंड यू गेट ऑल द सिस्टम्स इनटू करेक्ट। तो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। तो आंख बंद कर कर थोड़ी देर अगर कोई अपनी श्वास पे ध्यान दे,
सांस खींचे, सांस छोड़े, सांस खींचे, सांस छोड़े, और बड़ा ध्यान से करें इस चीज को अपने कंट्रोल्ड मेथड में। इसी को योगा कहते हैं, इसी को हम प्राणायाम कई बार कह सकते हैं, इसी को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं, इसी को एक्सरसाइज इनिशिएटर कह सकते हैं। आपका बॉडी सिंक्रोनाइज होने लग जाएगा। कभी भी आप फटीक में चले जाएं, आप रिलैक्स हो जाएं, एक हल्का सा टेक ले लें दीवार के पास, जूता जरा सा किनारे रख दें, आंख बंद कर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स पे आप ध्यान दें, एंड यू विल सी यू आर फ्रेश अगेन। सडनली विद इन 3 मिनट्स और 3 और 30 सेकेंड्स में भी काम हो जाएगा। यू विल फील रिफ्रेश्ड। तो दैट मीन्स ब्रेन इज अ ड्राइवर। ब्रेन वो ड्राइवर है जो कि गाड़ी चला रहा है, और अगर गाड़ी कोई मोबाइल देख के चलाएगा तो अटपटी चलेगी ना लोकेश? गाड़ी कैसी चलेगी? अटपटी चलेगी। अगर कोई गाड़ी मोबाइल देख के चला रहा है, और अगर मोबाइल देख के नहीं चला रहा है तो गाड़ी अच्छी चलेगी। द सेम वे इज आवर ब्रेन। अगर ब्रेन फ्री होके हमारी चीजों को कर रहा है तो उसके लिए स्लीप जरूरी है। टू गेट ब्रेन इनटू रेस्ट इज नेसेसरी। सेकेंड, स्लीप इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन योर बॉडी। नॉट ओनली योर शुगर, नॉट ओनली योर ब्लड प्रेशर, फॉर ईच एंड एवरी क्रिकेटियन, जो हमारा सर्केडियन रिदम होता है, इसको बॉडी में नॉर्मलाइज करने के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। सेकेंड, लाफ्टर इज वेरी मच नेसेसरी। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस स्कोरिंग की बहुत जरूरत होती है। जब रोने की बारी आई तो रोइए, जब हंसने की बारी आती तो हंसते हैं, लेकिन दिन का बड़ा मुख्य समय हमारा साइलेंट में जाता है। अगर उसको हम प्रसन्नता में लगा दें तो हमारा हैप्पीनेस स्कोर बढ़ जाता है। हैप्पीनेस हमें कहां से मिलती है? जिम जाने से मिलती है, एक्सरसाइज करने से मिलती है, डांस करने से मिलती है, स्विमिंग करने से मिलती है, जुम्बा करने से मिलती है। तो ये जब भी हम लोग इसको काम की तरह भी कर रहे होते हैं कि एक्सरसाइज को काम की तरह करें, तो हमारा हैप्पीनेस स्कोर बढ़ता है। जब हमारा हैप्पीनेस स्कोर बढ़ता है तो हमारा HbA1c तक कम हो जाता है। रिसर्च में प्रूव्ड है, इट इज नॉट आई एम टॉकिंग, दिस हैज बीन प्रूव्ड इन रिजल्ट, कि अगर आपका हैप्पीनेस स्कोर अच्छा है तो आपकी शुगर अच्छी होगी, बीपी अच्छा होगा, सारे और पैरामीटर्स अच्छे होंगे। तो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, हैप्पीनेस, ये बिल्कुल बराबर है दवा के। दवा एक पार्ट है हमारे जीवन का। जैसे राम जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनको संजीवनी की आवश्यकता पड़ी। भगवान चाहते तो स्वयं उनको जिंदा कर सकते थे, लेकिन उसी तरीके से जो पेशेंट मेरे पास आ रहा है वो लक्ष्मण जी हैं, जो तीमारदार उसे ला रहा है वो राम भगवान है, दवाई बनाने वाली कंपनी हनुमान, और हम लोग सुषेण वैद्य। तो हम लोग अपना सबका रोल निभा रहे हैं, इसी रोल में हम लोग हैं। इसीलिए दवा भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। दवा इज जस्ट लाइक संजीवनी, विदाउट संजीवनी नथिंग विल हैपन। तो इसको हाथ में रखिए, कहिए धन्यवाद, तू है तो मैं हूं, एंड इट विल हैपन डेफिनेटली। इफ मेडिसिन आर देयर, द स्माइल इज देयर ऑन द फेस। एक दर्द में भी अगर हम छोटी सी भी कोई भी बुखार में दवा ले लेते हैं ना, तो कितना क्योर मिल जाता है, कितना अच्छा लगता है थोड़ी देर में। द सेम वे इज द मेडिसिन। तो इसको कहीं ना कहीं हमारे लिए बनाया ईश्वर ने, तो हमारे पास प्राप्त है, और इसको औषधि को आप संजीवनी का रूप समझें और उसी तरीके से ग्रहण करें। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मतलब एवरी एवरी जो रोल है इस इकोसिस्टम के अंदर, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और उसका एक दूसरे के प्रति जो डिपेंडेंसी है वही एक बिल्कुल त्रिलोकेश, जो मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने औषधि में, ये संजीवनी बूटी वाला, तो कितना फिट बैठता है ये मेरे प्रोफेशन में। बिल्कुल फिट बैठता है। बिना संजीवनी के, जब हमारे ईश्वर ने हमें ये दर्शन दिया कि बिना संजीवनी के काम नहीं चलेगा, तो हम लोगों को भी इसी से प्रेरणा लेनी है कि जिस चीज की दवा है, बीपी की दवा है हमारे पास, हाँ है, शुगर की दवा है हमारे पास, हाँ है, टाइमली हर एक चीज की दवा है, तो उसको लेकर और कंट्रोल में रखने की जरूरत है, एक्सरसाइज से कंट्रोल में रखने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और आपने बोला कि मतलब एक्सरसाइज से बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, बिल्कुल 100%। बैलेंस से 100%। वो आ जाता है। बट सर फिर भी क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि व्हेन पीपल मेजर देयर ब्लड शुगर लेवल, राइट, तो कई बार सडन स्पाइक और सडन डिप देखने को मिलते हैं उनको रीडिंग्स के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे पेशेंट को सोचना चाहिए कि इट्स अ सीरियस कंडीशन, और जहाँ पे पेशेंट को सोचना चाहिए कि हाँ, कल मैंने कुछ ऐसे शुगरी एलिमेंट ले लिए थे बॉडी के अंदर, तो शायद इस वजह से ये एक नॉर्मल फ्लक्चुएशंस है। तो आपको क्या लगता है सर? बहुत बढ़िया। देखिए, ये जब भी हम लोग डायबिटिक नहीं होते, व्हेन वी आर नॉट डायग्नोज्ड टू हैव डायबिटीज, उससे पहले से काम चालू होता है बीटा सेल फंक्शंस के डिटोरिएशन का। बीटा सेल्स वो हैं जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाकर बर्न करवाता है, जहां से एनर्जी बनता है। तो अगर बीटा सेल्स हमारे धीरे धीरे जब डिटोरिएट करके 50% तक खराब, उनकी क्षमता कमजोर हो जाएगी, खराब तो नहीं कहूंगा मैं, क्षमता कमजोर हो जाएगी इंसुलिन बनाने की। जब तक 50% पैनक्रियास की क्षमता कमजोर नहीं होगी, तब तक मैं कुछ भी खा जाऊं, कितनी भी बड़ी स्वीट खा जाऊं, मेरी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी।
तो whenever it is diagnosed to have diabetes or pre-diabetes, you have nearly approximately less content of your beta cells at the time of diagnosis, that is 50%. 50% बीटा सेल रिड्यूस्ड है। अब उस 50% बचे हुए बीटा सेल पे पूरा लाइफ आपका चलना है। तो अगर आप कोई शुगरी चीज खाते हैं तो बाकी 50 तो अभी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे हेल्दी होंगे, उनको समय देना पड़ेगा, तो कई बार शुगर के स्पाइक्स आते हैं। अगर आप मेडिसिन के इंपैक्ट में कोई चीज करते हैं तो स्पाइक्स थोड़े कम होंगे, एक्सरसाइज करके करेंगे तो स्पाइक्स कुछ कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेटिव फ्यूल जो हमारी बॉडी का है वो बॉडी कई बार यूटिलाइज करती है। अल्टरनेटिव फ्यूल हमारी बॉडी में क्या क्या है? अल्टरनेटिव फ्यूल हमारी बॉडी में फैट है, प्रोटीन है। तो जब वो फैट को बर्न करके एनर्जी बनाती है तब जाके कहीं बॉडी कमजोर होने लग जाती है, और अगर वो प्रोटीन्स को इस्तेमाल करती है तो कमजोर और पतले होने लग जाते हैं। अब जब भी आप स्पाइक्स की बात बोलते हो तो स्पाइक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो चीजें इंकित करें, आप लिखे जरूर। जैसे आज मैंने कुछ खाया और अगले दिन उसके मुझे कोई भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं मेरी शुगर में, उसकी कैलोरीज बढ़ा रहा है, तो आप उसको लिखिए कि कल मैंने एक रसगुल्ला खा लिया था, तो आज मैंने जब सुबह फास्टिंग चेक करी तो मेरा जो फास्टिंग शुगर है वो ये था और मेरा पोस्ट प्रेंडियल ये था, जो कि नॉर्मल से इतना ज्यादा है। अब आप अवेयर हो गए। अगली बार जब आपका हेल्दी पैटर्न आप फॉलो कर लेंगे, जब तक हेल्दी वापस ना आए तब तक आप रसगुल्ला ना ट्राई करिए। अगली बार जब कभी अगर आप ट्राई करते हैं तो ना, पहली बात तो ना करिए, और अगर करिए तो फिर कम करिए बिल्कुल, जिसमें से कितना बड़े आपको पता चले। तो कोई भी मिठाई, कोई भी मीठा फल, कोई भी व्यंजन, कोई भी जो जो आपके डॉक्टर के अलावा, आपके डाइटिशियन के अलावा किसी ने प्रिस्क्राइब किया है, जब भी आप ले तो बस उसकी जांच कर ले, तो आप खुद अवेयर हो जाएंगे कि कितना आपका बढ़ता है किस चीज से। अगली बार उस चीज को हम लोग होश में खाएंगे, जोश में नहीं खाएंगे। स्वाद नहीं छीनना है, कितना, कब, कहां, ये हमको डिसाइड करना है। दैट कैन बी प्लान्ड बाय यू, योर डॉक्टर एंड हिज डाइटिशियन। ये बड़े अच्छे से टेलर हो जाएंगी चीजें। जो मिठाई आप खाना चाहते हैं उसको टेलर करके कैसे बनाना है, उसमें कैसे कैलोरी कट आउट करनी है, ये सब सारी चीजें लिखी हैं बड़े अच्छे से। हमारा कोई एजुकेटेड डाइटिशियन इसको बढ़िया से बना के आपको दे सकता है। आजकल बड़ा टेक्नोलॉजी तेज होते हुए बड़ा फूड्स में आ रहा है कि ये शुगर फ्री है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मिठाई शुगर फ्री है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें शुगर एडेड शुगर्स नहीं है, नो शुगर्स हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीटा सेल्स पे बर्डन अगर हम ज्यादा डालते हैं मीठे पदार्थ, हाई कैलोरी फूड्स खाकर, तो कहीं ना कहीं हमारे बीटा सेल्स को इंजरी होती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब कभी अगर बीटा सेल्स की जरूरत पड़ी, नहीं है, कमजोर है, तो हमें बाहर से इंसुलिन का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली बड़े सचेत होते हुए, अगर आपको डायबिटीज है तो कृपया शक्कर से ज्यादा मीठी है जिंदगी, इस मेरे मंत्र को याद रखा जाए। शुगर बढ़ी तो घबराई आंखें, डरे गुर्दे और सो गए पैर। शुगर बढ़ी तो घबराई आंखें मींस रेटिनोपैथी, डरे गुर्दे नेफ्रोपैथी, और सो गए पैर मींस न्यूरोपैथी। दीज आर 3 माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हम लोग बड़े आराम से गाने के माध्यम से समझा सकते हैं अपने सारे फ्रेंड्स को। हम लोग अपने आपस में एजुकेट कर सकते हैं कि 3 चीजों की जांचें कराएं और इन्हें होने न दें। साल में एक बार आंख की रेटिना की जांच करा लें, साल में एक बार आप अपने किडनी फंक्शंस का जांच करा लें, साल में एक बार आप अपने पैर में वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट करा लें। और मानिए लोकेश, ये जांचें हमारे देश में हर एक मेडिकल कॉलेज में फ्री में उपलब्ध है, हमारे लोगों के लिए कई बार नॉमिनल चार्जेस में उपलब्ध हैं, तो इनका फायदा उठाना चाहिए। 3 माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज में गड़बड़ कर सकते हैं, वो है एक रेटिना, किडनी में हमारा नेफ्रॉन्स और पैर में न्यूरॉन्स। तो इनकी जांच साल में एक बार कराएं और इन्हें होने न दें। होने न देना बड़ा कठिन भी है, और कई बार होने न देने से बड़े फायदे हैं। इलाज कई बार बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, लेकिन प्रोटेक्शन बड़ा सरल होता है। तो शक्कर, आपको शक्कर से ज्यादा मीठी है जिंदगी, ये हरदम याद रखना पड़ेगा मेरी पंच लाइन। शक्कर से ज्यादा मीठी है जिंदगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, टोटली एग्री ऑन योर दिस पॉइंट। एंड देन इंडिया में तो है ही कि अगर आप जितना सिंपली लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हैं लोग, उतना ही बहुत जरूरी है। दीज पंच लाइन, दीज सेइंग्स, ये बड़ा याद रखते हैं लोग मुझे कई बार बोलते हैं नापो तो जानो, और सर शक्कर से ज्यादा मीठी है जिंदगी, नमस्ते की बजाय नापो तो जानो बोलते हैं कई बार लोग मुझे। मतलब ये सर्कुलेट हो रहा है, इट्स इजी थॉट प्रोसेस जो लोग 100% it is completely कर पा रहे हैं। and in our country it is needed. It is the day of it is the most biggest step which has to be followed in every fraternity where healthcare is there. नापो तो जानो, बिना नापे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट का एक फन सेगमेंट, इट इज रैपिड फायर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके आंसर्स एक वर्ड या एक फ्रेज में देना है।
तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर कि एक ऐसी चीज जो पेशेंट करते हैं और आपको हंसा देती है, कि मतलब रिलेटेड विद द डायबिटीज मेजरमेंट और समथिंग। वेरी गुड। एक चीज है जो मेरे मेरे जितने भी डायबिटिक फ्रेंड्स हैं वो जब करते हैं तो मुझे बड़ा खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। वो सब मुझे सच बता देते हैं, मुझे सब सच बता देते हैं। कल मैंने ये खाया, मैंने परसों वो खाया, ये खाया। मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि उन्होंने मुझे सच बता दिया। बाकी तो मैं कवर कर लूंगा ना, मैं उनको सब चीजों से कवर कर लूंगा, एजुकेट कर दूंगा, उनकी दवाइयों में सेटलमेंट कर दूंगा, डाइट एक्सरसाइज। लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगता है जब वो बताते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट। कूल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डॉक्टर्स को हमेशा रहता है कि जानना कि पेशेंट की लाइफस्टाइल के बारे में। तो अगर मैं आपकी लाइफस्टाइल में पूछूं कि आप ऐसी कौन सी एक मूवी है जो आप बार बार देख सकते हैं बिना बोर हुए, वो कौन सी मूवी है? बहुत बढ़िया। अभी तो देखो, जो अगर मैं पुरानी मूवी की बात बोलूं तो एक गोलमाल मूवी है। अगर आपको याद होगा, अमोल पालेकर सर थे उसमें। उस मूवी को आप जितने बार मुझे दिखाना चाहो मैं उतने बार देखूंगा। और मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के दिखाता हूं जब वो बीमार होते हैं या जब भी उनको कोई दिक्कत होती। आप भी कभी देखो, क्या मूवी बनाई है बनाने वाले ने। मतलब स्टार्टिंग के पहले सीन से लेके लास्ट सीन तक, जब तक उनकी मूछें गायब हो जाती लास्ट फोटो में, तब तक आप देखिए, इतना हंसेंगे आप, इतना हंसेंगे, क्या बताया जाए, क्या बताया जाए। लव इट। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी नेक्स्ट वॉच लिस्ट में यही मूवी होगी फॉर श्योर। सर आपको एक हेल्थ एडवाइस लिखना हो बिलबोर्ड पर या और सिर्फ 3 शब्द लिखने की परमिशन हो, तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे? हाँ, ये तो देखिए आपने बड़ा फेवरेट क्वेश्चन पूछा है। मैं सिर्फ लिखूंगा, नापो तो जानो। बिल्कुल। ये मेरे को आंसर पता था। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद एक चीज़ के लिए मैं क्लियर था, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में सर। और सर और लाइक फाइनली अगर आपको एक हेल्थ गैजेट बनाना हो, जैसे आपने बताया कि टेक का ज़माना है अभी, तो अगर आपको एक हेल्थ गैजेट इन्वेंट करना हो तो आप कौन-सा हेल्थ गैजेट इन्वेंट करोगे और वो किस प्रोसेस से रिलेटेड होगा टाइप? बहुत बढ़िया। मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कई लोग उस डायरेक्शन में काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि सारा जितना भी ब्रह्मांड हम लोगों ने अपना क्रिएट कर रखा है, ये हमारे अंदर से ही बाहर आया है। अगर हम टेक्नोलॉजी को ले लें, रॉकेट साइंस को ले लें, स्पेस को ले लें, इंजीनियरिंग को ले लें, मेडिकल को ले लें, हमारा ग्राफिक्स को ले लें, आपके स्टूडियोज में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये सब अंदर से ही बाहर आया है। तो हमारे ब्रेन के अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। ईच एंड एवरी नॉलेज इज फ्रॉम इनसाइड। कोई हमें बाहर से आके नहीं दे गया है, परजीवी कोई हमको आके कहीं से नहीं दे गया है। हमारे अंदर से ही सारा ज्ञान निकलता है। तो इसका मतलब जो अंदर की यात्रा है वो बड़ी बड़ी ही मतलब जरूरी है। आपकी यात्रा बाहर की जो भी हो, लेकिन आपको अपने अंदर की यात्रा करनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा गैजेट बनाना चाहता हूं जिस तरफ से इधर से आदमी जाए और उधर से उसकी डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट और उसका इलाज सब हो जाए, और दूसरी तरफ वो निरोग होकर निकले। मैं ऐसा गैजेट बनाना चाहता हूं, इधर से कोई भी आदमी जाए और उधर से चल के निकले तो उसके सारे मर्ज रेस द्वारा, अंदर साउंड द्वारा सब क्लियर हो जाए, और डिस्टेंस भी ज्यादा ना हो, 100 मीटर का हो। नहीं चल पा रहा है तो व्हीलचेयर में बैठाल के निकाल दिया जाए उसको, और वो निरोग होकर दूसरी तरफ निकले। ये मेरी आशा है ईश्वर से। काश मैं ऐसा कुछ देख पाऊं अपने जीवन काल में। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आई थिंक बहुत एक अच्छा थॉट प्रोसेस था ये पूरा सर। तो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि इट्स 10 पीएम एट नाइट, एंड जो आपने एनर्जी देखी है वो सुबह मॉर्निंग 7 एएम की नहीं है, वो 10 पीएम की एनर्जी है। सो सर थैंक यू सो मच एक एनर्जी डालने के लिए। आई थिंक मेरे डेटा ने भी साथ दिया इतनी एनर्जी आपकी देख के सर। सो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। Thank you, Lokesh, for having a nice journey throughout for since past 44 minutes. We are in together. बहुत अच्छे से आपने हर एक चीज को मेरी अंडरस्टैंड करके हर एक क्वेश्चन को लीड किया। थैंक यू, यू हैव डन वेरी नाइस। एंड आई थिंक सो जितने भी मेरे मित्र डायबिटिक हैं, वो जब भी कभी उनको बोरियत लगे तो वो थोड़ा सा हंसें जरूर। हैप्पीनेस स्कोर बहुत चाहिए हमारे जीवन में। हमारे एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे बेटे का इलाज किया, गंगाराम में है वो। तो उन्होंने मेरे से बोला था कि जीवन में बहुत सारे समय तुम्हारे ऐसे आएंगे जबकि तुम थोड़ा सा दुखी होगे, लेकिन कुछ समय ऐसे भी आएंगे जब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, उसको अच्छे से एंजॉय करना। यू एंजॉय योर दोज मोमेंट्स वेयर यू आर हैप्पी, यू हैव टू एंजॉय इट फॉर फुलेस्ट। वो कवर कर लो अपना हैप्पीनेस स्कोर। हैप्पीनेस स्कोर बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।